Hello friends, once again welcome back to our channel Pharmagyan, and today we will discuss about interview questions and answers related to 21 CFR Part 11 Electronic Records and Electronic Signatures. Interview questions and answers Part 1 of 2. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. Friends, in this video we will discuss Part 1 and Part 2 related to 21 CFR Part 11 interview questions and answers. In part 1, we will discuss these 7 questions. What are the requirements of 21 CFR Part 11? What computer systems must be compliant with 21 CFR Part 11? What is computer system validation? What is accurate record generation? How must records be protected? What is limited system access? And what is an audit trail? And in part 2, we will discuss these 7 questions. So, let's start the topic. Part 1 of 2. What are the requirements of 21 CFR Part 11? So the answer is 21 CFR Part 11 requires that closed computer systems must have a collection of technological and procedural controls to protect data within the system. Open computer systems must also include controls to ensure that all records are authentic, incorruptible and where applicable confidential. जो 21 CFR Part 11 के requirements है वो क्या requirements है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स हम हमारे प्रीमाइसेस में या कंपनी या फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं उनमें जो भी हमारा जो डेटा होता है वो सब प्रोटेक्टेड होना चाहिए. ओपन कंप्यूटर सिस्टम्स जो भी हैं वो सब कंट्रोल्ड होना चाहिए और जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें उन कंप्यूटर सिस्टम्स में जो रिकॉर्ड्स हम रिकॉर्ड होता है वो सब अथेंटिक, इनकरप्टिबल और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होता है. So the next question, what computer systems must be compliant with 21 CFR Part 11? So the answer is all computer systems which store data which is used to make quality decisions or data which will be reported to the FDA must be compliant with 21 CFR Part 11. In laboratory situations, this includes any laboratory results used to determine quality, safety, strength, efficacy or purity of a drug product. In clinical environments, this includes all the data to be reported as a part of clinical trial used to determine quality, safety or efficacy of a drug product. And in manufacturing environments, this includes all the decisions related to product release and product quality. कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स को 21 CFR Part 11 के कंप्लायंस में होना चाहिए? तो हमारी जो भी कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसमें जो भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं वो सारे सिस्टम्स कंप्यूटर सिस्टम्स 21 CFR Part 11 कंप्लाइंट होना चाहिए. एग्जांपल्स में ये मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक ये एग्जांपल्स दे ही चुका हूँ. तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम्स 21 CFR Part 11 कंप्लाइंट होना चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन? सो द आंसर इज़ validation is a systematic documentation of system requirements combined with documented testing demonstrating that the computer system meets the documented requirements. It is first requirement identified in 21 CFR Part 11 for compliance. Validation requires that the system owner maintain the collection of validation documents including requirement specifications and testing protocols. Computer system validation क्या होता है? इसमें क्या है, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स की रिलायबिलिटी, अथेंटिसिटी को हम चेक करने के लिए उनको वैलिडेट करते हैं, सिस्टम को वैलिडेट करते हैं कि जो आउटपुट रिज़ल्ट जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम देता है हमें वो रिलायबल है, अथेंटिक है कि नहीं है. इसलिए हम कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन करते हैं. व्हाट इज़ एक्यूरेट रिकॉर्ड जनरेशन? सो द आंसर इज़ accurate record generation means that records entered into the system must be completely retriable without unexpected alteration or unrecorded changes. This is generally tested by verifying that records entered into the system must be accurately displayed and accurately exported from the system. So, accurate record generation क्या होता है कि अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो भी डेटा हमारा उसमें सेव होता है वो डेटा फ्यूचर में भी रिट्राइवेबल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई अनएक्सपेक्टेड अल्ट्रेशंस नहीं होनी चाहिए.
जो भी डेटा कंप्यूटर में सेव होता है। एक तरीके से कुछ भी अगर सेव हो रहा है कंप्यूटर में, जो भी हम डेटा सेव कर रहे हैं, जो भी स्टडी फाइल्स या फिर हमारा जो इक्विपमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड उसमें रिट्राइव हो रहा है, वो फ्यूचर में भी रिट्राइवेबल होना चाहिए और उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा कि कोई भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसमें कोई अल्ट्रेशन ना कर पाए, ऐसा होना चाहिए। और कोई अनरिकॉर्डेड चेंजेस भी उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसका प्रॉपर ऑडिट ट्रेल भी जनरेट होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रिकॉर्ड्स बी प्रोटेक्टेड? So the answer is electronic records must not be corrupted and must readily accessible throughout the record retention period. This is usually performed through a combination of technological and procedural controls. So जो कंप्यूटर सिस्टम्स पे डेटा सेव होता है वो रेडीली हर एक किसी पर्सन के लिए एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा एक इक्विपमेंट है ऑटोक्लेव या फिर कोई सा भी वेसल्स या कोई भी इक्विपमेंट हम ले लेते हैं मशीन से, हमारी फिलिंग मशीन्स हैं, जो भी इक्विपमेंट हमारा है उसका जो भी डेटा हम जनरेट होता है ड्यूरिंग एक्टिविटी, तो वो डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेटर भी उसको एक्सेस कर ले। तो एक स्पेसिफिक लेवल का उसमें एक्सेस लेवल डिफाइंड होना चाहिए और उस एक्सेस लेवल पे उस पर्टिकुलर पर्सन को ही या फिर उस पर्टिकुलर एक्सेसिबल पर्सन को ही वो रिकॉर्ड चेक करने का परमिशन होना चाहिए। सभी पर्सन्स को ऐसे रिकॉर्ड्स को चेक करने का परमिशन नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिटेड सिस्टम एक्सेस? आंसर, सिस्टम ओनर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट दे नो हु इज एक्सेसिंग एंड अल्टरिंग देयर सिस्टम डेटा when controlled technologically. This is commonly demonstrated by requiring all users have unique user IDs along with passwords to enter the system. तो इसका जनरली हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी सिस्टम है हमारा कंप्यूटर सिस्टम या जो भी हमारा सिस्टम है उसमें एक्सेस के लिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए डिफरेंट यूज़र आईडी और पासवर्ड्स होना चाहिए। यूज़र आईडी, पासवर्ड्स और उन पर्टिकुलर पर्सन्स का एक स्पेसिफिक एक्सेस कि कितना उस कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है वो किस लेवल तक वो एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेस प्रोवाइड होना चाहिए हर एक कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज एन ऑडिट ट्रेल? सो द आंसर इज an audit trail is an internal log in a program that records all the changes to the system data. This is tested by demonstrating that all changes made to the data are recorded to the audit trail. सो ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि जनरली अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम को कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मेजर एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है कि आप एक क्लिक करते तो वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मेजर एक्टिविटीज़ जो कि आपके सिस्टम को या फिर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट में करती है, उन सब चीज़ों को या फिर उन सारी इवेंट्स को लॉग करने के लिए एक ऑडिट ट्रेल जनरेट होता है। जैसे मैंने अगर कोई फाइल कॉपी की है तो उस फाइल को कॉपी करके कहाँ पर मैंने पेस्ट किया है उसका ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई डेटा में चेंजेस कर रहा हूँ तो उस मैंने क्या चेंजेस किया है और क्या रीज़न से चेंजेस किया है उसका ऑडिट ट्रेल आना चाहिए। अगर कोई इक्विपमेंट है उसमें अलार्म जनरेट हुआ है तो उस अलार्म को एक्नॉलेज किया नहीं किया, कितने टाइम तक वो अलार्म जनरेट रहा, ऐसे उसका ऑडिट ट्रेल आना चाहिए। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का ऑडिट ट्रेल या ऑडिट लॉग जनरेट होना चाहिए। तो ये हमारा ऑडिट ट्रेल का हो गया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो का रहेगा। उसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, व्हाट आर ऑपरेशनल सिस्टम चेक्स, व्हाट आर डिवाइस चेक्स, व्हाट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 21 CFR पार्ट 11 कंप्लाइंट प्रोग्राम्स, व्हाट इज़ अ पॉलिसी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, what documentation requirements are required for 21 CFR Part 11 compliant programs, and what are the requirements for electronic signatures. And the last question, does 21 CFR Part 11 have any requirements for passwords or identification codes? So हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान।